Hi, so this is my first video on this YouTube channel. So I should introduce myself, who I am. I am Umang Jaiswal. Okay, just simply call me UJ. Okay, what I am doing? I am doing masters in what? Chemistry. Okay, from where? IIT Madras. Okay, so why this channel? Why this channel? So this is just UJ Chemistry. Okay, so why this channel? This is me, UJ. Okay, and this is chemistry, my favorite subject. So what I am doing, I'm going to do is I will teach chemistry on this YouTube channel. Okay, so this is the first video and introduction video. So I'm just going to start the first chapter on my YouTube channel. Is the stereochemistry. Why this is stereochemistry? Because this is my most favorite topic in chemistry. Okay, I will start with the stereochemistry. What I will teach on this YouTube channel, so this will be basically organic chemistry. Then I will teach somewhat physical and somewhat inorganic chemistry. Okay, so I will start from stereochemistry. So let's start. सो फर्स्टली से यहाँ पे पेन थोड़ा सा ये व्हाट इज आइसोमर्स. फर्स्टली हमें यही जानना है कि आइसोमर्स क्या है. ठीक है, सो इफ़ यू विल से आइसोमर्स बचपन से देखते आ रहे हैं. क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. यही होता है. मैंने क्यों कहा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स? बिकॉज isomers having the same molecular formula but they have different properties. What properties are there? Optical property or physical property, chemical property, anything can be same or different. Okay, but there is a property different in those compounds, in those molecules, and that called isomers. Okay, so if you will see the example. Okay, let's see an example. So having molecular formula, let's take ethanol. So it's C2H5OH. Everyone know what is ethanol. So chemistry वाला भी और non chemistry वाला भी है. Everyone know what is ethanol. So if you will see ethanol, okay, what will be it? It can be always ethanol. Do you know कि C2H5OH, या फिर simply saying C2H5OH, simply you can say that this is ethanol. If you will say it C2H6O, okay, so this is the molecular formula. Now it can be written as what? CH3 CH2 OH, which is ethanol. Okay, and also it can be written as what? CH3 O CH3. What is this? Dimethyl ether. Means the functional group change. फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया मतलब क्या? अलग ही हुए, है ना. अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर देयर but they having same molecular formula. This is means these are isomers. Okay, what type of isomers I will see. Okay, we will see. So this is the isomers. What is isomers? And how to classify. Okay, so let's see how to classify. Classification, if
आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन अगर करेंगे, so there will be a classification structural or constitutional isomers. Simply structural isomers or constitutional isomers. And second one is what? Stereoisomers. Okay, so what is structural isomers? Simply saying how to know this is a structural isomers. So here bond connectivity is different when what? When two molecules which are isomers having bond connectivity different. Okay, and what is stereoisomers? What is stereoisomers? When they have, okay, let's see, if they have bond connectivity different means bond connectivity different means what? एटम्स कहीं और लग गया जाके, बॉन्ड टूटा, मल्टीपल बॉन्ड्स टूट के दूसरा रिंग बन गया हो है ना, और या फिर क्या हुआ कि एक एटम जाके कहीं और लग गया. लेट्स सी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा यहाँ पे क्या था, OH था है ना ये, और ये क्या हुआ, O यहाँ पे लग गया, पहले ये कनेक्टेड था एक कार्बन से, ये दो कार्बन से कनेक्ट हो गया, मीन्स क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, बॉन्ड ब्रेक हुआ और कहीं और जाके कनेक्टिविटी चेंज हो रही है. एटम्स के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो जब चेंज हो रही है तो डैट विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. ओके, व्हाट इज स्टीरियोआइसोमर्स? व्हेन बॉन्ड कनेक्टिविटीज आर सेम. ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन bond connectivity same, but what is different? Then you will see what is different spatial arrangement of groups or atom attached. ठीक है, तो सिंपली पहले हम क्या करते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्स्ट. ओके, सो इफ़ यू विल सी द एग्जांपल, मैंने पहले भी दिखा दिया बट फिर भी देखते हैं है ना. सो लेट्स सी इफ़ यू हैव दिस, ओके, एंड आल्सो दिस, ओके, और वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, ठीक है. इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? ब्रांचिंग इज़ द डिफरेंस है ना. बॉन्ड की कनेक्टिविटी इज़ द डिफरेंस. मीन्स इफ़ यू विल सी हियर, यहाँ से एक मिथाइल उठाया और यहाँ पे लाके अटैच कर दिया है ना, किनारे से कॉर्नर से एक कार्बन को उठाया और यहाँ पे अटैच कर दिया. सो दिस इज़ व्हाट? बॉन्ड कनेक्टिविटी आर डिफरेंट and this will be structural isomers. What is this? Structural, or simply saying constitutional isomers, है ना. क्लियर है. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स पे, क्योंकि इसको मैं डिटेल में नहीं ले जाना चाहूँगा. अगर किसी को चाहिए होगा तो लेट्स डिमांड इन द कमेंट सेक्शन. ओके, कमेंट सेक्शन में बताना कि हमको ये टॉपिक डिटेल में चाहिए, आई विल टीच. ओके, बट अभी हमारा जो टॉपिक है, अभी जो हम टॉपिक शुरू कर रहा था वो स्टीरियो केमिस्ट्री था, तो हम उसी पे चलते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी स्टीरियो आइसोमर्स. इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आगे चलते हैं. नाउ सी, इफ यू विल सी व्हाट ओके, दिस इज अ कंपाउंड है ना, आर्बिट्रेरी और रैंडम कंपाउंड है, नहीं कोई भी मैंने ले लिया, और हमने क्या किया कि एक ये बनाया. ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अगर आप लेट्स सी हेयर दैट व्हाट दिस इज अबव द प्लेन. ओके,
how this is above the plane, what is the representation of wedge dash, we will see in the further classes. Okay, if किसी को नहीं पता तो हम आगे देखेंगे, but here see, this is the wedge and this is the above the plane. Here what is, this is the below the plane. यानी क्या हुआ, स्पेशियल अरेंजमेंट एटम की चेंज हुई कि नहीं हुई, ग्रुप की स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गई. यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहा है, ये अबव द प्लेन था बट ये बिलो द प्लेन है और इसकी स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो गई. दिस इज सिंपली अ डायस्टीरियोमर्स, मीन्स क्या हुआ, एक स्टीरियो आइसोमर फॉर्म हो रहा है. ठीक है, सो हाउ विल यू क्लासीफाई द स्टीरियो आइसोमर्स, लेट्स सी हाउ विल यू क्लासीफाई द स्टीरियो आइसोमर्स. मेरी राइटिंग आई थिंक बहुत अच्छी नहीं बन रही है भी अच्छी नहीं और इधर बन भी नहीं रही है. खैर, दो तरीके से क्लासिफाई करूँगा. कैसे करूँगा, लेट्स सी. पहली चीज़ क्या है कि अगर इंटर कन्वर्जन इन द सेंस कि एक आइसोमर्स को उसके दूसरे आइसोमर्स या एक मॉलिक्यूल को उसके आइसोमर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एनर्जी बैरियर थी या एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो हाई थी. क्या तो वो हाई होगी, क्या तो वो लो होगी, बोलो यार, है ना. और अगर वो हाई होगी सो सिंपली इट्स कैन बी से एज कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, है ना, एंड इट कैन बी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स. सो अभी कोई कमेंट सेक्शन में एक बार बोलेगा सर ऐसे कैसे, डेटा तो आपने दिया नहीं, 2 कंपाउंड लिख दिया, अगर आपको डेटा नहीं पता तो आप कैसे बता दोगे ये कॉन्फ़िगरेशनल है या फिर ये कन्फॉर्मेशनल है. भाई नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या है, क्यों, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना. तो अभी अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की बात करें तो लेट्स सी कि सिंपली सेइंग व्हाट, हेयर इंटर कन्वर्जन रिक्वायर्ड बॉन्ड ब्रेकिंग. Okay, and what is here, no bond breaking required. Okay, किसी को समझ नहीं आएगा कमेंट में प्लीज़ लिख देना कि सर राइटिंग आपकी बहुत गंदी है, मैं इसको सुधारेगा. ठीक है. So no bond breaking required. Then how it is interconvert? This is only the single bond rotation. Okay. So conversion due to here is single bond rotation. ठीक है. कन्फॉर्मेशनल में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से जो कन्वर्जन होते हैं उसे हम कन्फॉर्मेशनल कहते हैं. एंड व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन, फिर बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्ड. ठीक है, एक बॉन्ड ब्रेक किया आपने, उस बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से अगर इंटरकन्वर्जन हुआ है तो वो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशनल होगा. ठीक है. एंड ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन द सिंगल बॉन्ड रोटेशन. लेट्स सी हाउ. So if you will have a carbon double bond, carbon, and this is A, B, B, A. छोटा बच्चा भी जानता है कि सर ये क्या है, ये सिस है ना. अभी मैं और डिटेल में नहीं जा रहा, आगे सारी चीज़ें बताएंगे. ठीक है. अगर हम इसको इंटर कन्वर्ट करें, मीन्स इस डबल बॉन्ड को रोटेट कर दें तो क्या होगा, this will be B, this will be A, again this will be B and this will A. ये क्या है, this is the configurational isomer. Okay, this is what, this is the configurational isomers. How it is configurational isomers, because the changing, the interconversion requires bond breaking. आपने क्या किया, आपने इन दोनों को इंटरकन्वर्ट कर दिया, है ना. बी को ए की जगह, ए को बी की जगह, तो क्या आप ऐसे ही घुमा दोगे, है ना. आपने ये कैसे किया होगा, आपने ये कैसे किया होगा, लेट्स सी, आपने ये कैसे किया होगा, आपने इस ए को इस बी से कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने यहाँ से कुछ रोटेशन करी होगी, है ना, यहाँ से कुछ रोटेशन हुआ होगा तभी तो ये हुआ होगा.
है ना। तो लेट्स सी कैसे हुआ होगा, आइए हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कब बनता है? डबल बॉन्ड इज़ द पाई बॉन्ड, है ना। सॉरी, ये ये है ना, ये है ना, ये पी ऑर्बिटल्स हैं और इनके साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है। तो अगर आप यहाँ की रोटेशन करोगे तो क्या डबल बॉन्ड टूट नहीं जाएगा क्या? है ना, टूट जाएगा ना। यानी अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहोगे, क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहोगे तो मतलब क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है बट हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग। दूसरी, बॉन्ड की कनेक्टिविटी सेम है, ए बी कन्वर्ट हुआ पर दोनों लगे तो कार्बन पे ही है ना, अटैच तो कार्बन पे ही है। और अगर ये अटैच कार्बन पे ही है मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चरल तो है नहीं, ये स्टीरियो आइसोमर ही है। बट व्हाट इज दिस, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, बिकॉज कन्वर्जन नीड्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग रिक्वायर व्हाट, हाई एनर्जी, है ना। समझ में आया? लाइव पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे। खैर आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हाउ द कन्फॉर्मेशनल रिक्वायर्स लो एनर्जी, हाउ द आइसोमर्स क्रिएटेड ओनली बाय द सिंगल बॉन्ड रोटेशन। ओके, सो इफ़ यू विल सी इथेन, अगर आप क्या देखो, इथेन देखो, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सॉहॉर्स कॉन्फॉर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको सॉहॉर्स के बारे में नहीं पता हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट सिंपली हम ब्यूटेन बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द, ये एक ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, मेरी ना ड्राइंग अच्छी है ना राइटिंग, कमेंट में पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा अब जब भी ये वीडियोस लोग देखेंगे। खैर देखो, दिस इज़ वॉट, दिस इज स्टैगर्ड एंड दिस इज एक्लिप्स, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या हुआ, यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि जब आपने इसको इंटर कन्वर्ट किया तो लेट्स सी कैसे किया, कुछ नहीं से इसको यहाँ से पकड़ो और इसको यहाँ से ऐसे घुमा दो, ठीक है। ये जो हैं ये तीनों, ठीक है, ये जो हैं ये ओके, ये ऐसे घुमा दो, यहाँ से पकड़ो और यहाँ से ऐसे रोटेट कर दो। आपको पता है सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज़ अलाउड, अलाउड रोटेशन, पाई बॉन्ड की तरह ये ब्रेक नहीं हो जाया करते, ये रोटेट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो क्या ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो गया होगा क्या, है ना। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि आपने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ा और इसको ऐसे अगर रोटेट कर दोगे, ये सिंगल बॉन्ड से रोटेशन, तो क्या ये बन नहीं जाएगा, है ना। अब आप सर कहोगे सर रोटेट करने से ये तो बन गया, बट दोनों सेम ही तो हैं, इथेन ये भी है, इथेन वो भी है। और अगर सिंपल आप इसे लिख दो, सॉरी ब्यूटेन ये भी है, ब्यूटेन वो भी है, और अगर सर आप इसको ऐसे सिंपल लिख दोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मीन्स अगर आप इसको सर ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, पिट्टा पड़ता है। जब आप पढ़ोगे ना एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, देन यू विल सी दैट दिस इज मोर स्टेबल, दिस वन इज वॉट, मोर स्टेबल देन दिस, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू रिपल्सन है। ये दो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप जो हैं इनके बीच में रिपल्शन की वजह से ये कम स्टेबल होता है, और अगर ये कम स्टेबल है तो बेटा इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं ऑब्वियसली, है ना। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैरियर, लेकिन एक और क्लासिफिकेशन स्टीरियो आइसोमर्स का होता है, डेट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, है ना। कैसे होता है, दो तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स और होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ व्हाट, एनंशियोमर्स
बहुत मज़ेदार है जब मैं आपको एनंशियोमर्स पढ़ाऊँगा। एंड व्हाट इज़ दिस डायस्टीरियोमर्स? ओके, अरे मेरी राइटिंग, खैर, enantiomers and diastereomers. If you will talk about enantiomers and if we will talk about diastereomers, तो simply मैं इसको कैसे बताऊंगा? When there is any molecule and its mirror image, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स क्या होगा? कोई भी दो स्टीरियो आइसोमर्स व्हेन दे आर नॉट मिरर इमेज, ठीक है। वो क्या हो? एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो, बोलो। और वो क्या हो? एनंशियोमर्स क्या है? व्हेन दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बट व्हाट? हमेशा तो ऐसा होगा नहीं। मीन्स लेट्स सी अ कंपाउंड। सीखने की कोशिश करो, है ना। दिस इज OH, दिस इज OH, है ना। और अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, दिस इज OH, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक ऐसे मिरर लगा दें, ठीक है, एक ऐसे मिरर लगा दें, तो क्या ये दोनों एनंशियोमर हैं क्या? क्या ये दोनों एनंशियोमर्स होंगे क्या? तो मैं कहूँगा नहीं होंगे एनंशियोमर्स, क्योंकि वहाँ पे क्या है, दो कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या होती है? सो द कंडीशन इज़ व्हाट? द सेकंड कंडीशन फॉर एनंशियोमर इज़ व्हाट? दे शुड हैव नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस। ओके, मीन्स नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस। एनंशियोमर्स में क्या होना चाहिए? देखो, डायस्टीरियोमर्स तो सिंपली क्या है, कोई भी दो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है वो डायस्टीरियोमर्स हैं। बट व्हाट अबाउट एनंशियोमर? एनंशियोमर्स के लिए दे शुड हैव अ मिरर इमेज। ओके, दे शुड बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मीन्स दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। लेकिन क्या दोनों मिरर इमेज हो गए तो क्या वो एनंशियोमर्स हैं? नहीं। एक कंडीशन और आती है, और वो कंडीशन क्या है? थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको, थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको, कि दैट शुड बी नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेजेस। हमेशा याद रखने का, ठीक है। कैसे? देखो, ये दोनों मैंने कहा एनंशियोमर्स नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर पोजिबल है। तो व्हाट इज़ नॉन सुपर इम्पोजिबल, या मीन्स व्हाट इज़ सुपर पोजिबल, या व्हाट इज़ नॉन सुपर पोजिबल? सो लेट्स सी, सुपर पोजिबल एंड नॉन सुपर पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल इज़ व्हाट? टू हैंड्स लाइक दैट। ओके, दोनों हाथों को अगर आप एक दूसरे के ऊपर एक ही डायरेक्शन में रखोगे तो क्या बनेगा, है ना। लेट्स सी, हाथ भी अच्छे से नहीं बनेगा मेरा तो, ये ठीक है। और दूसरा हाथ आप अगर इसके ऊपर रखोगे तो ये तो सब कुछ सुपरपोजिबल है, बट यहाँ पे एक थंब नहीं आ जाएगा क्या? एक दूसरे बाएं या दाएं हाथ का आपने जो भी जिस पे रखा है उसका यहाँ पे एक थंब नहीं आ जाएगा क्या? मतलब क्या है, दूसरा वाला हाथ कैसे रहा होगा? मैंने कहा एक ही डायरेक्शन में हो तो, ठीक है, मिरर इमेज ऐसे रहा होगा, है ना। मीन्स क्या था कि वो एक दूसरे पे सुपरपोज नहीं हो रहे थे, मीन्स एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे थे, है ना। ठीक है, मीन्स अगर हम देखें कि कोई भी चीज़ है, लाइक लेट्स सी देयर इज ई, ठीक है, और इसका एक मिरर इमेज है ये। तो अगर आप इसको ऐसे उठा के और इसके ऊपर रख दो, ठीक है, अगर इसके ऊपर रख दो तो क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिबल हैं? नहीं।
मीन्स हमने क्या कहा, लेकिन यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगाई कि इस ई को आप रोटेट नहीं कर सकते, कोई भी रोटेशन अलाउड नहीं है। प्रीवियस एग्जाम्पल शायद समझ नहीं आए, उसको डिटेल में आगे बताएंगे, बट दोज आर नॉट द एनंशियोमर्स। एनंशियोमर्स कब होंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दिस इज ओ एच, दिस इज ओ। अब अगर आप इसका मिरर इमेज लेते हो इधर, दिस इज ओ एच, सो व्हाट इज दिस, ये दोनों कैसे भी रोटेशन, देखो अगर किसी ने फिशर कन्फर्मेशन पढ़ा हो, मीन्स सॉरी फिशर प्रोजेक्शन पढ़ा हो, तो देयर विल बी व्हाट, आप यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकते हो, इन प्लेन रोटेशन इज अलाउड। लेकिन दिस इज़ द चैलेंज, कैसे भी रोटेट कर लो कभी सेम नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर सेम नहीं बनेगा इसका मतलब एक दूसरे पे सुपरपोज होगा ही नहीं, एंड दीज आर एनंशियोमर्स। याद रखना ये दोनों डिफरेंट हैं। एनंशियोमर्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं हम देखेंगे आगे, ठीक है, देखेंगे आगे कैसे दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, क्योंकि लग तो सेम ही रहे है ना, लोग कहेंगे भाई लग तो सेम ही रहे। कैसे देखेंगे, एनंशियोमर्स के टॉपिक में देखेंगे कि हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, ओके। सो हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये एनंशियोमर्स है, मीन्स नॉट ऑलवेज द मिरर इमेजेस, आर एनंशियोमर्स, दे कैन बी होमोमर्स। व्हाट इज होमोमर्स, मीन्स दे कैन बी सेम, ठीक है। सो अभी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि पहली वीडियो और काफ़ी लंबी जा रही है, ठीक है। सो हमने पहले समरी देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। हमने क्लासिफिकेशन किया, आइसोमर्स क्या होता है देखा, उसका क्लासिफिकेशन किया। देन उस क्लासिफिकेशन में स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है उसको देखा, उसका क्लासिफिकेशन किया। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सो आगे हम क्या सीखने वाले हैं, आगे हम सीखने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लास आई विल सी ऑप्टिकल एक्टिविटी, सॉरी एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, सो कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वहाँ पे हम कायरलिटी भी पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद और हम वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सो देयर विल बी हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, या फिर कैसे पता करें ये ऑप्टिकल है। डिटरमाइन मीन्स आइडेंटिफाई, ओके, नॉट डिटरमाइन, आइडेंटिफाई ऑप्टिकल। अरे यार क्या लिखा है ये मैंने, सॉरी, हाँ, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। सो अगले क्लास में ये देखेंगे व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट स्टडी, रीड, एंड इफ़ यू लाइक द content, okay, just eliminate the writing, okay, just forget the writing, whatever the writing is, क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी है। सो इफ़ यू लाइक द content just like and comment whatever you want the changes, okay, whatever the topic you want that I should teach। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगे, so demand the topics what should I teach, okay। And I am a student, I am too learning like you, so if there is any mistake just tell in the comment section and I will improve that in the next class, okay। Also if you like the content just share ठीक है, and subscribe to, thank you।